Hello students, welcome to my channel. Today we are starting class 10 geography chapter number 3 water resources. Before proceeding, I would like you all to please like, share and subscribe my channel, and if you have subscribed hit the bell icon. अच्छा, ये जो PDF जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है. लिंक is given below in the description box. Do join my telegram channel as well. Now starting the chapter water resources. Water is a renewable resource. As we have already discussed in chapter number 1, the difference between renewable and non-renewable. Renewable and non-renewable are the resources classification based on exhaustibility. So renewable resources वो होते हैं that can be renewed by the time. 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for the fresh water fit for use. अपन को पता है जो अर्थ है वो मोस्टली वाटर की बनी हुई है, तो उस वाटर में भी मोस्टली वाटर आपके ओशियंस में प्रेजेंट है. सम आर प्रेजेंट इन द ग्लेशियर फॉर्म दैट इज इन फ्रोजन स्टेट. सम आर only a little proportion of water fits for drinking, or it is a fresh water that is fit for use. Okay, some facts and figures. 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans, and only 2.5% of water as fresh water. मैंने अभी आपसे ये चीज़ डिस्कस करी थी. India receives nearly 4% of the global precipitation and ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. Per annum means yearly. Okay. By 2025, it is predicted that large part of India will join countries or regions having absolute water scarcity. देखो क्या prediction हुआ है. By 2025 जो इंडिया है उसका काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसी कंट्रीज में ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी बहुत एब्सोल्यूट है. तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में स्कैरसिटी की. Water scarcity and need for water conservation and management. The lack sufficient water as compared to its demand in a region is known as water scarcity. अब water scarcity क्या होती है कि the lack of sufficient water as compared to its demand. जितना water हमें चाहिए वो वाटर कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड. उसकी डिमांड ज़्यादा है और वाटर हमें कम मिल रहा है, तो इट इज़ वाटर स्कैरसिटी. कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोग. एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. लार्ज पॉपुलेशन. देखो अब इसमें डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है. तो व्हाट आर डैम्स? अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट. ओके, तो ये है डैम की डेफिनेशन. ऑब्वियसली इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक एज वेल. मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. Multipurpose river projects large dams that serve several purposes in addition to impounding the water of a river and used later to irrigate agricultural field. For example, the Satluj Biaj River Basin, the Bhakra Nagal project, etc. Advantages of multipurpose river projects are electricity generation. सही बात है, मल्टीपर्पज रिवर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है. irrigation, water supply for domestic and industrial users, flood control, recreation, inland navigation, fish breeding. ये सारे एडवांटेजेस हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के. ओके, बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की. It affects the natural flow of river, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. सही बात है, जब पानी भरा ही भरा रहेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, नीचे जो रिवर है उसके नीचे बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा. इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट फॉर रिवर्स एक्वेटिक लाइफ. भाई पानी भरा ही भरा रहता है तो कभी कभी एक स्टैग्नेंट वाटर होने की वजह से भी जो रिवर की एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है. इट सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स. अगर फ्लड आ जाती है तो ये जो पानी है ये ओवरफ्लो होता है. ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो भी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और सॉइल
अपने अंदर सबमर्ज कर देती है, हेंस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट डिस्प्लेसेस द लोकल पीपल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज क्रिएटेड. These are used unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. These projects induced earthquakes, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water. मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. कुछ मूवमेंट्स भी हुए हैं, कुछ लोगों ने कुछ हड़तालें की है, मूवमेंट्स करे हैं कि रिवर पर्पस, ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से ये नहीं होने चाहिए. जैसे कि दीज प्रोजेक्ट कॉज मेनी ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टेरी डैम आंदोलन एटसेट्रा ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. क्या होता है जब रिवर बनता है तो जब रिवर पे डैम बनता है तो जो डैम है वो बनने के लिए काफ़ी जगह चाहिए, काफ़ी स्पेस चाहिए. उसकी वजह से जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती है उसे हटाती है गवर्नमेंट. तो उसके अगेंस्ट में उस चीज़ के भाई क्यों लोग हटे, इस बात के अगेंस्ट में काफ़ी लोगों ने कई सारे मूवमेंट्स करे हैं. जैसे कि उसमें अपने इंक्लूड है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेरी डैम आंदोलन एटसेट्रा. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the control, cost and benefits of the multipurpose project. जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं तो उसकी वजह से भी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग refers to the practice of storing and using rainwater from the surface where it falls. जहाँ पर भी रेन का पानी गिरता है वहीं से उसे स्टोर करना और उसकी हार्वेस्टिंग करना, इट is known as rainwater harvesting. In hill and mountainous region, people built diversion channels like the gulls or kulls of the western Himalayas for agriculture. In Rajasthan, rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water. In the floodplains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate the fields. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil. जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को रेन फीड स्टोरेज में बदल देते हैं ताकि वो वाटर को अलाउ कर सके, ताकि जो सॉइल है उसका जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहे. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas used for storing drinking water. हाउ टंकास वर्क. की जो टैंक और टंकास जो राजस्थान में बने हुए हैं ये कैसे वर्क करते हैं. टैंक्स आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू ए पाइप. ये जो रूफ स्लोपिंग रूफ्स होती है ना वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं एक पाइप के थ्रू. रेन फॉलिंग ऑन दिस रूफ टॉप्स वुड ट्रेवल डाउन टू द पाइप स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टंकास. अंडरग्राउंड तो टैंक्स बने हुए होते हैं और ये जो रूफ्स होती है इस पे पाइप लगे हुए होते हैं. तो जैसे ही रेन होती है तो इन पाइप के थ्रू वो पानी आपके अंडरग्राउंड टैंक्स में भरता जाता है. Here we come to an end of this chapter. If you have liked my explanation, kindly like, share, subscribe this channel, and if you want all the notifications regarding to this channel, kindly hit the like button, bell button. Okay. और अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ गो टू माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ से आप मेरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट ऑल अदर नोट्स और हैंड रिटन नोट्स वो सब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है आपके लिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.